Hello students, now we'll discuss the solutions of paper 1 of chemistry for the date 4th October 2020. You already have a paper for this which you have given on this date. Now let us discuss the solutions for the question paper what you have given today. So we'll discuss that question number 1 for the chemistry paper 1, and in paper that question number 1 is question number 37 up to 36. It will be questions of different subjects. So we'll discuss according to the question paper, the questions. So question number 37 is what we have. Question number 37. We are given that question number 37, the coordination number and the oxidation number of the element in the given complex are respectively. So we have to tell the coordination number and the oxidation number. So we are given the element E. En is a ethylene diamine, C2O4 is a oxalatine, and outside it is given nitritine. We know that nitritine has -1 charge, oxalatine has -2 charge. This is 0. So obviously the element will have +3 charge. So we can say that from this information that coordination number will be equal to 6 and the oxidation state will be equal to, that is, +3. Because both oxalate as well as ethylene diamine are bidentate ligands. So we can write like that. We can talk about the next question. So in this case, I can write that what will be the answer. You already know that. You can find out the answer in that. So the coordination number and the oxidation state respectively. So the answer for that will be C for us. That will be the answer. Next question is we are given a cell. In that the cell given to us is anode and cathode. So if we are given the cell in the question, we know that what is the cathode, what is the anode. So we are given the anode reaction as, that is, we will write that Fe get converted into Fe plus 2 electrons. We are given the E naught of the anode, and the cathode reaction will be given to us, that is, the cathode is the RHS side of the cell, Fe3 plus. So it is Fe plus 3 get converted into, by taking 1 electron, it will get converted into Fe plus 2. And the E naught of cathode is given to us. That is given to us. So E naught of anode and cathode is given to us. So E naught of cathode, that is a reduction potential, it is minus 0.41 volt, and this is given to us the reduction potential as plus 0.771 volt. This is given to us. Now we have to predict that, calculate the E of the cell. So we can write that E of the cell, we know that according to the Nernst equation, the cathode minus anode, E naught of cathode minus E naught of anode, we know that, minus 0.0591, and we can write that you have to multiply this with 1 and this with 2, because you know that the number of electron lost in the process should be equal to number of electron gain in the process. So I can write that the number of electron exchange is 2. So you can write that Nernst equation first, n into log of QC. So in this case I will write that E cell we have to calculate, cathode minus anode is given to you, that is 0.771 minus of 0.41. This will be the cathode minus anode for you. Then we can write that minus 0.0591 upon n into log of, the concentrations are given to us. So this is an anode concentration and this is a cathode concentration. So I can write that here you have multiplied by 1. So you will write that Fe plus 2, that is of anode, here we have written, and Fe plus 2 of the cathode concentration. But in that case you have to write square because you are going to multiply the reaction with 2 and divide it by the cathode concentration of Fe plus 3. So that will be also to the power of 2. Now the concentrations are given to us in the cell. You can see that the concentrations are given to us. So what you can write is, this will be equal to, we get 1. That is 181. Yes, 181
minus 0.0591 upon 2 into log of. Now we have the concentration of anode concentration. In the cell we are given that 0.01 to the power of 2. This is given to us 1. Divided by, I can write that 1 square, right now, multiply by, we can say that is the cell reaction we have, right? So we can write that the cell reaction is, this is anode concentration, this is cathode concentration. So in that case we can write that that will be 0.1 molar concentration. So we can write that this will be 0.1 molar concentration is given to us, but we'll write this as plus. So I have invert that, right? So now you can write that it will be equal to, we can write that this will be equal to 1.181. मैंने इसको plus किया, so मैंने इसको invert किया. Plus, so that we can write directly that what will be the answer for us. इसको 2 से divide करूँगा तो 0.0259 होता है. 259. 2 से divide करूँगा तो multiply by will get minus 3. If you solve this, you'll get minus 3. And the answer what we get is, that is 1.0925. That is the answer. So we know that how to write the oxidation, we know that how to write the reduction. We are able to solve it. मैंने इसको plus किया तो cell reaction से we can write that QC. So we are able to tell the answer for that. Next we can write as, it's easy, we know that. Next we can write question number 39. It is right. So we got that. In case of 38, you can write the answer. What is the answer for that? 1.09. You got the answer as A. So in case of 38, you can write that the answer is A. Now we can write that. Let us discuss what is the answer for 39. We'll discuss for that. Now in question number 39, we are given that using the data given below, find the incorrect statement regarding for the given species. All what we are given in this, if you observed that E0 values, all given to us are reduction potential. Now oxidizing agent and reducing agent we have to tell, or the most stable right now element or ion we have to tell. Okay. So what we can say, one thing is known to us in question number 39, that strength of oxidizing agent that will be directly proportional to SRP value. SRP, we know that. So if we now we can discuss, we are given the 4 E0 values. Strongest reducing agent among them, the one which have smallest SRP value. So strongest reducing agent among them is chromium. That's correct. It has a smallest SRP value, minus 0.74. Strongest oxidizing agent which has maximum SRP value, we know that. Order of reducing power, on the basis of we are able to tell, maximum reducing power will be for which has least SRP value. So we know that. Most stable in its reduced form is chromium among the following. That is wrong. Chromium will not be most stable in the reduced form. It should be Mn plus 2. Mn plus 2 because the SRP value of MnO4 to Mn plus 2 means that higher the SRP value, more is the tendency for the reaction to occur. So MnO4 converts into MnO4 minus converts into Mn plus 2 has maximum tendency to gain electron. It means that this will have maximum stability because it has maximum tendency to convert into this. So we'll say that maximum strongest, that is maximum stability of this. So it has maximum stability because it has maximum SRP value. So this has maximum tendency to convert into this. That's why that will be the answer for us. So if we say that most stable in its reduced form will be not chromium, it will be Mn plus 2. You can say that.
Then we can write that if the dissociation constant of two weak acids HA1 and HA2 are given K1 K2, the relative strength of the acids will be, okay, so we know that for T1 we can write like this. HA1 we can write that, yes, two acids are given to us. HA1 will get converted into, that is in equilibrium with H1, that is H plus A1, dissociation constant is this, and HA2 will be converted into H plus sign plus A2, and its dissociation constant will be K2. So we know that if C1 is concentration for this, C2 is concentration for this is 0, C1 alpha 1, C1 alpha 1, C1 into 1 minus alpha 1. And this will be C2 into 1 minus alpha 2. This will be, we'll say that C2 alpha 2. And this will be also C2 alpha 2. We can write like this. Now if we write that, what is K1? So we know that K1 will be equal to C alpha 1 square 1 upon alpha 1. And K2 will be equal to C alpha 2 square divided by 1 minus alpha 2. Now if I say that alpha 1 and alpha 2 are very small, if alpha 1 and alpha 2 is less than 0.1, then I can write that, therefore I can get that K1 upon K2 will be equal to, that is C1, this is C2, right? So C1 alpha 1 square upon C2 alpha 2 square. Now if we say that both dissociation constant are given to us, we have to check the relative strength. Now whatever the concentrations are given to us, we are able to tell, that is alpha will be inversely proportional. So we can write that alpha will be like this. So we can write that K1 upon C1. So if we assume that the concentrations are same, I can say that if C1 is equal to C2, because concentrations are not given to us, if C1 is equal to C2, then I can say that alpha 1 upon alpha 2 will be equal to under root of K1 upon K2. That is how we can write that, if C1 is equal to C2. So the best expression what we can have is under root of K1 upon K2. We already discussed this in the class, but here we can write that what we have to do. Next question is question number 41. In 41 we are given that pH, we are given that CH3 double bond CH2. In this you have to add HOCl. Now we know that this is positive, this is negative. First this will attack on this double bond, so that we'll get a positive charge. So PHCCH3 will get a positive charge on this, CH2 and Cl will be added on this. Now you can add this negative charge on this. So you got that the product of the reaction as, we can say that, which will be the product of reaction, in this OH should be there. So A will be the option. We get that pH. See here OH you are going to write that, this is CH3, this is CH2Cl. So answer is A. In this case we'll write that answer will be equal to A, whereas in this case answer will be equal to what that is given to us now. In case of 40 it will be equal to C. So we are able to write the answers in all cases as I have discussed you what should be the given answer. And in this case question number 39, the answer we have D, that is incorrect, right? So these are the answers for the given questions. Next question we can write is after question number 41. We have just written the added right now, that is electrophilic addition reaction. Cl positive will be the electrophile there, so it will be electrophilic addition reactions. Now we can write that we can say that question number 42. In 42 we know that you have to reduce lithium by lithium aluminum nitrate. So if we write like this OCH3, I will write that. So in this case with the lithium aluminum hydride, it can reduce only the keto group, and that will be in alcohols. So it should be like this. We know that this should be OH and this should be OCH3. That is the product. The first one will be like this, and the second one we can say that it should be like this. So this will be your A, and the second that is second reaction given to us, in which you will form B. So we know that the keto group and the ester both are right now, that is reduced by. So we know that if there is a heteroatom between the two carbon atom, we'll get the two products. So in this case I'll write one product with this,
other product with this. So I'll get a product as like this. So here one of the product will be like this. Here it will be OH and this will be your B, but the other part is the alcohol of 2 carbon atoms. So C2H5OH. That is the product what we have. So A and B, if we talk about that, what is A and what is B? I think the answer what we get is from the given option. So answer will be the C, which is given to us. Right? These are reducing agent. Lithium aluminum hydride can reduce the carbonyl group, the ester group, but not the ether group. It cannot reduce the ether. Next we can write is, that is we can say that it is more than one option correct, right? One or more than one option correct. So we have to write that for more than one option correct, it is, if we check out that, for which of the following KH upon KD is greater than 1? All what we are given is the reactions. So question number 43, nitration is, we know that all a reaction, electrophilic aromatic substitution reaction, EAS reactions, which occurs in equilibrium state, which forms, you can write that, yes, which forms equilibrium reactions. Equilibrium reaction है ना, जिनमें इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना अपन ने, बैकवर्ड और फॉरवर्ड. इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैन शो आइसोटोपिक इफेक्ट. तो आपको याद होगा आइसोटोपिक इफेक्ट, वी नो दैट आइसोटोपिक इफेक्ट अपन ने किसमें पढ़ा था? तो एक तो अपन ने सल्फोनेशन में पढ़ा था, है ना, और दूसरा अपन आइसोटोपिक इफेक्ट कहां पढ़ते हैं? हाइड्रोनेशन में. ये दोनों में पढ़ते हैं बच्चन भी आइसोटोपिक इफेक्ट. तो इनके लिए KH upon KD ग्रेटर देन 1 होगा. तो ऑप्शन बी में है गिवन है अपन को, ऑप्शन सी में गिवन है अपन को, और ऑप्शन वी आर गिवन दैट KH upon KD. तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में तो सल्फोनेशन और आयोडीनेशन होता है. इन केस ऑफ सो विल राइट दैट देयरफॉर आंसर इज, अपन लिख सकते हैं बी एंड सी तो 100% श्योर है अपन, बट ए तो नहीं होगा बिकॉज नाइट्रेशन डजंट शो द आइसोटोपिक इफेक्ट. व्हाट अबाउट दैट हेलोजनेशन? यस, अगर हम हेलोजनेशन में, क्योंकि एंड इन केस ऑफ डी में अपन क्या करेंगे कि भाई आपको मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कंपाउंड गिवन है और मुझे इसका क्लोरिनेशन करना है, सपोज करते हैं अपन ये क्लोरिनेशन करना है मुझे इसका. So what you will write that in presence of sunlight you will write for the major product, you will write a radical first, then that radical will react with Cl2. So you have to break a CH bond in this. But in case of अगर मेरे पास ऐसे given होता CH और D given होता और यहाँ भी D given होता और फिर मुझे bond break करना पड़ता Cl2 in presence of sunlight, तो obvious सी बात है इसमें तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होता है जिसमें CH बॉन्ड ब्रेक होता है. इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होगा जिसमें CH बॉन्ड ब्रेक होगा. तो अगर CH बॉन्ड ब्रेक करना है तो इजीली ब्रेक होगा एज कंपेयर टू CD बॉन्ड के, बिकॉज CD बॉन्ड इज स्मॉलर. तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे? अगर CD बॉन्ड स्मॉलर होगा, उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेट स्लो होगा उसके कंपैरिजन में. तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे भाई इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट होगा बिकॉज CH3 CD और इसमें रेडिकल बनेंगे, तो इसमें रेडिकल बनेगा तो इस केस में आइसोटोपिक इफेक्ट होगा. सो आंसर इज B एंड C एज वेल एज D, वो भी होगा. तो D भी इसका आंसर होगा बिकॉज हम आइसोटोपिक इफेक्ट उनमें ऑब्जर्व करते हैं जिनमें हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आइसोटोपिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा. तो अगर हम इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह सभी को D ले लें तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ D स्लो हो जाएगा. जैसे अपन ने सल्फोनेशन में पढ़ते हैं, बेंजीन के कंपैरिजन में हेक्साड्यूट्रोबेंजीन का रेट स्लो होता है 4 टाइम्स. KH upon KD is equal to 4 फॉर सल्फोनेशन, जैसे हमने क्लास में पढ़ा, राइट. तो ये भी इक्विलिब्रियम में होता है, ये भी इक्विलिब्रियम में होता है. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो भी इक्विलिब्रियम में होगा सब में आइसोटोपिक इफेक्ट होगा.
और इन केस ऑफ हैलोजनेशन ऑब्वियसली बात है देयर विल बी आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेट में CH या CD बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर इफेक्ट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 44 में विल राइट दैट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी सीन। ऑब्वियसली बात है ए वाले में तो इंट्रामॉलिक्यूलर, इन केस ऑफ ए वी कैन राइट दैट इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें, तो ये तो होगा आंसर हमारा। बी को चेक कर लेते हैं भाई, बी में क्या होगा, अगेन इट इज एसाइलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस इज अल्काइलेशन, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एसाइलेशन रिएक्शन, ये एसाइलेशन रिएक्शन था। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये तो एसाइलेशन रिएक्शन है तो इसमें भी होगा, ये भी आंसर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, बिकॉज व्हाट विल हैपन ना उस केस में अपन कहेंगे हमारे पास बेंजीन है, आपने ऐसे मतलब वहां पर ले रखा है अपन को ऐसे, तो ये C डबल बॉन्ड O Cl है, अपन क्या कहेंगे AlCl3 के साथ ये इस पे अटैक करेगा, ये ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बेंजीन पे अटैक करेगा, दैट अटैक इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए में भी होगा, बी में भी होगा। अब अपन कहेंगे सी वाले में भी होगा, Br2Fe, तो Br2Fe में तो सी वाला जो अपने लिखा हुआ है सी केस में वी ऑलरेडी नो दैट Br2Fe, तो वी नो दैट कि भाई Br2Fe अगर आप लिखोगे है ना, तो Br2Fe में पहले Br2Fe से रिएक्ट करके FeBr3 बनाएगा और FeBr3 फिर Br2 से रिएक्ट करके Br पॉजिटिव बनाएगा, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी इज आल्सो द आंसर, सो विल राइट दैट ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। डी वाले में तो इट इज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट में होगा तो इट इज अ रेडिकल मैकेनिज्म। अगर कोई रिएक्शन अपन हैलोजन का रिएक्शन सनलाइट में करते हैं तो वो दैट विल बी, अगर अपन उसको लिखेंगे तो अपन कहेंगे भाई अगर आप इसको लिखोगे तो इट विल बी द बेंजाइलिक रिएक्शन, क्योंकि Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू आर गोइंग टू शो द बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, मैं उसको बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहूंगा। तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में वी नो दैट व्हाट विल हैपन, भाई यहां पर आप लिखोगे ऐसे, इसमें Br लिखूंगा, इधर CH3 और इधर BCH3 लिखूंगा, दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वी गॉट इट, विल राइट द क्वेश्चन नंबर, अपन चेक करते हैं 45। तो this is how your question number 42 is. We'll write the question number 45. So let us check the question number 45. What will happen in question number 45? Right? So question number 45 में we are given that the incorrect order of magnetic moments among the following is. अगर हम चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, only 1 2 3, I think only 3 molecules are given to us, और 3 molecules में ही उन्होंने different orders बनाए 3 complexes में। तो let us calculate the magnetic moment of all। तो अपन क्या करेंगे, FeCN6, तो अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, तो इसके लिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं। FeCN6 के लिए FeCN6 and the negative charge on that will be 4 negative, तो भाई इसमें 4 नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, Fe का +2 चार्ज है, तो Fe+2 का मतलब हो गया दैट इज 3d6, 4s तो 0 हो जाएगा एंड 4s 0, सो विल राइट दैट 3d6 मींस नाउ इट इज अ स्ट्रांग लिगेंड है ना, तो स्ट्रांग लिगेंड होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, 6 हो गया, तो इसमें तो अपन पेयरिंग कर देंगे भाई, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव तो होता नहीं है, तो चलो तीनों में देख लेते हैं कि किसमें FeCN जो 0 वाला है वो लास्ट में गिवन है, तो लास्ट में गिवन है तो मैं कहूंगा डी वाला करेक्ट हो सकता है, उसके अलावा कोई भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो 0 आएगा FeCN6 के लिए। मेरे ख्याल से मैं आंसर डी टिक कर दूंगा, क्योंकि तीनों से ही सारे ऑप्शन बनाए आपने। सो इसके लिए तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट 0 लिखने वाला हूं। अब एक और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, कोबाल्ट भी गिवन है अपन को, Mn भी गिवन है, तो चलो कोबाल्ट, अब दोनों ही केस में हमको वीक लिगेंड गिवन है, पेयरिंग का तो हो ही नहीं सकता, राइट ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन Mn की बात करते हैं, तो MnCl4, और इसमें मुझे गिवन था 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव का मतलब है
कि Mn प्लस 2 चार्ज, तो Mn को मैं लिखूंगा अगर प्लस 2 तो इट विल बी इक्वल टू Mn तो 25 होता है, तो मैं इसको 3d5 लिख दूंगा। 3d5 का मतलब है इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तब तो म्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, भाई 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s ये तो 0 हो गया था, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैं कहूंगा इसी में मैक्सिमम होगा। सो 5.90 के आसपास 889 होगा, अपन 90 लिख लेते हैं। बी दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज्यादा इसके लिए होगा और सबसे कम एफिशिएंट के लिए। वेरिएबल टू राइट द आंसर, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब हम 46 की बात करते हैं। अब देखो 46 में अपन को गिवन है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंने बताया था उधर कि 46 में अपन को गिवन है दैट इज वी आर गिवन दैट CH3। अब हम सबको पता है भाई कि देखो क्या करना होता है अपन को, अगर आप Cl2 को लाइट के प्रेजेंस में लोगे तो मैं रेडिकल मैकेनिज्म करूंगा, और इसमें तो बेंजाइलिक कार्बन है तो मैं बेंजाइलिक कार्बन लिखूंगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, CH2Cl बन जाएगा। मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, ये मेरा कंपाउंड A है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपन से द कंपाउंड B इज, तो कंपाउंड B, तो अपन है ना 46 वाले में मुझे आंसर बताने की जरूरत है, तो करेक्ट वन इज D और इनकरेक्ट पूछा तो ABC हो गया, क्योंकि 0 FeCN होल 6 के लिए था, तो अपन को पता था 45 में क्या आंसर होगा। 46 में इसमें एक बार Cl2 और AlCl3, भाई ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मैं ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन करूंगा, इसमें एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा और एक बार ये प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी बना लो फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी बना दो इन दोनों में से। चलो B इसको लिख लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, चलो अपन इसको हटा देते हैं एक को, ताकि अपन कंपाउंड को गड़बड़ ना करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज, मुझे ना इनकरेक्ट बताना है अगेन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A and B are same, that's correct, the molecular formula is same. A, B are positional isomers, yes, इसमें इधर है इसमें इधर है, yes. CCl bond length in A is larger, yes, because the lone pair is not in conjugation, लेकिन इसके lone pair conjugation में होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल तो छोटा बॉन्ड लेंथ होगा। No, this no, it cannot be. So we can write that the incorrect statement is, the incorrect statement about the reaction is, हमको incorrect बताना है। Molecular mass of A and B is same, that is correct. A, B, C are A and B are positional isomer, that is also correct. CCl bond length in A is larger than B, that is also correct. Then none of these, so answer should be equal to D, क्योंकि हमें तो incorrect option statement बताना है about the reaction, तो इसमें तो बाकी तो सारे correct हैं A, B, C, तो answer should be equal to D, the incorrect statement. So इसमें मैं कहूँगा the answer should be equal to D. अगर मुझे ऑप्शन A, B, C इसमें given होंगे तो A, B, C में मैं क्या करूँगा, will write that कि अगर मुझे आप A, B, C दोगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई A, B, C के केस में तो उसमें इनकरेक्ट की जगह आपको करेक्ट ऑप्शन पूछना चाहिए, ABC इज करेक्ट, तो विल राइट दैट द आंसर इज D, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थे, बट द आंसर इज ओनली वन ऑप्शन करेक्ट एंड दैट इज D. सो विल राइट दैट 46 का आंसर इज D. नेक्स्ट वी कैन राइट इज 47. तो चलो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं अपन। 47 में क्या बताना है अपन को, देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, उसके हिसाब से अपन आंसर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अपन को गिवन है, ये तो सल्फोनेशन रिएक्शन है और अपन सबको पता है सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बताना है अपन को, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑब्वियसली सल्फोनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, ऑब्वियसली बात है, सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल। Reaction intermediate is carbocation and there is a sigma complex. Yes, the reaction is sigma complex. अपन ऐसे लिखते हैं, ये बेंजीन होता है, इसको SO3 से अपन रिएक्ट करवाते हैं, राइट। तो बेंजीन ऐसे अटैक करता है इस पे, ये इस पे ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है एंड जो बनेगा अपने पास दैट इज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा अपने पास, यहाँ पर SO3 नेगेटिव बनता है और ये जो बनता है इसी को अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एंड दैट इज अ
positive charge. That is a sigma complex. That's correct. None of these इसमें ABC आंसर आएगा. So we'll write that the answer is ABC. That is correct. Right? Question number 48 की बात करेंगे अपन. Question number 48 में अपन को given है in an electrochemical process. ठीक है भाई, electrochemical process a salt bridge is used. Yes, we know that. To complete the electrical neutrality in each solution. Yes, because जब रिएक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड में कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और कैथोड में एनायन का कंसंट्रेशन. तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है वो रिस्पेक्टिव आयंस मतलब अपोजिट आयन को दोनों हाफ सेल में सप्लाई करें. That's correct. To complete the electrical circuit to current can flow. Yes, आपने पढ़ा है उसमें कि भाई अगर मतलब कोई ऐसे अपन ने जैसे आपने हाफ सेल रिएक्शन पढ़ा होगा तो वी कैन राइट दैट. आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 48. तो जैसे अपन ने लिखा हुआ ये हाफ सेल्स हैं और ये हाफ सेल में सपोज ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर आयन सॉल्यूशन है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक आयन सॉल्यूशन है. वी नो दैट. तो इसमें अपन क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज रखेंगे और सॉल्ट ब्रिज में सपोज करते हैं अपन केसीएल रख लेते हैं. तो केसीएल में क्या करेंगे अपन, ये यहां पर जो देगा Cl माइनस आयन देगा और ये यहां पर K पॉजिटिव आयन देगा. बिकॉज इसका एनायन सपोज कर लेते हैं अपन सल्फेट आयन है, इसमें CuSO4 है और इसमें ZnSO4 है. तो ये जिंक आयन को इलेक्ट्रोड से दूर लेके जाएगा, वो सल्फेट आयन जो बचेगा कॉपर आयन के डिपोजिशन के बाद तो उसको सल्फेट पोटेशियम उसको दूर लेके जाएगा इलेक्ट्रोड से. तो वैसे रिएक्शन पड़ते हैं. तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दिया, इलेक्ट्रोड ने इधर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने कॉपर को दिया, कॉपर ने सल्फेट को दिया, सल्फेट वापस पोटेशियम को देगा. दैट इज हाउ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंप्लीटेड. फिर अपन कहते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नो, salt bridge is not an oxidizing agent. There is no redox reaction in the salt bridge. Redox reaction is for the half cell reactions. To minimize the liquid junction potential. Yes, यहाँ पर जो concentration बढ़ेगा तो इधर higher concentration और lower concentration जो इधर होगा उनके बीच में एक potential generate होता है. उस potential को कम करेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर concentration बढ़ने नहीं देगा Cl को देने से. Cl देगा तो वो जिंक को दूर लेके जाएगा तो concentration नहीं बढ़ पाएगा. Concentration में अगर difference नहीं आएगा यहाँ और यहाँ तो there will be no liquid junction potential, as you must have discussed in your class. Next we are given the question number 49 में. अभी question number 49 में what we can say in question number 49 we will say that so question number 49 में it is given to us which of the following doesn't give amide. Okay, so we are given that. I will write that question number 49 में which of the following will not give the amide with the AC, that is Cl, like this. Now actually what happen if I write option that is 1. So option 1 में we will say that we are given that NH and with this CH3 is attached and one more CH3 is attached. This will be a nucleophile. अगर मैं इसको यहाँ अटैक करवाता हूँ, सपोज इसको यहाँ अटैक करवाते हैं तो Cl को अपन लीव करवा सकते हैं. What I got, Cl को लीव करवाने के बाद we know that the reaction will be like that, वो SN2TH पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज फिर वो like that. I'm just writing in short. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना ऐसे बनाऊंगा भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ना इसने दिया था तो इसके पास एक CH3 है, एक और CH3 है और एक H है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया. अब नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर नाइट्रोजन के पास कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है तो फिर अमाइड नहीं बनेगा. इसमें तो प्रोटॉन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो फिर अमाइड बनेगा. Why it is so? Because proton leave करेगा तो I'll get the product like this ना, double bond O N CH3 CH3. This is the amide which is formed. अब मान लेते हैं कि अगर इसके पास ये भी CH3 होता तो तीनों CH3 में से कौन लीव करता, बिकॉज CH3 इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप. तो अपन क्या चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे वो 3 डिग्री अमाइंस या वो अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के पास अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं. तो 3 डिग्री अमाइंस हो गए.
they will not give form amines because 3 डिग्री अमाइंस में अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, कोई भी आर ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर एक प्रोटॉन होगा तो अपन कहेंगे ठीक है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन लीव करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता बिकॉज नाइट्रोजन के पास अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, 4 हो सकता है वो 1 डिग्री अमाइन से उसके पास 2 प्रोटॉन्स है। दैट इज हाउ वी कैन राइट द आंसर। अपन 50 की बात करते हैं। सो आंसर इज इसमें अपन कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, अपन से कहा था कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट अपन से पूछा, इसमें जो पूछा था अपन से विच डोंट फॉर्म अमाइड्स, मतलब जो नहीं बना सकते, तो 2 and 3 will be the answer. So your answer for that will be B. तो इस केस में अपना आंसर जो था वो B था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे अपन तो ऐसे लिखेंगे भाई we are going to consider one reaction, इसमें हाइड्रोलिसिस करना है, अपन को पता है कैसे करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। भाई हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड रो गिवन है, इट इज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन और अपन ने पढ़ा हुआ है कि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल का ऐसे रिएक्शन करेंगे तो ये यहां अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, देन द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैन बी, तो अपन बताएंगे कि भाई इसमें ऑक्सीजन 18 है तो अपने लिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट विल बी, इसमें गिवन है इन द गिवन हाइड्रोलिसिस, वाटर अपन को गिवन है इन द बेसिक मीडियम बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर, कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट द पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन इज, द पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन इन दिस केस द बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट इज SN2 मैकेनिज्म जैसे होता है, अपन SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसमें अपन का ऑक्सीजन 18 ना इस पे नहीं गिवन है, अपन का ऑक्सीजन 18 इस पे गिवन है। तो जैसे अपन ने इसमें लिखा था ना कि ये लीव करेंगे तो अपन यहां भी ये लीव कर देंगे भाई, इसमें अगर इसमें ऑक्सीजन 18 होता तो ये लीव करता और उस पे ऑक्सीजन 18 है तो लीव तो इसी को करना है, बिकॉज विल राइट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज O, नेगेटिव चार्ज बनेगा 18 वाले पे और ये OC2H5 होगा और OH बना अपने पास। नाउ वी नो दैट जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो ये लीव करेगा, मतलब ऑक्सीजन 18 जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन 18 है आपका और ये आपका OH बनेगा और C2H5 O नेगेटिव बना, बाद में ये प्रोटॉन ले लेगा इससे बिकॉज मीडियम इज बेसिक। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा अपने पास कि भाई आपका ऑक्सीजन 18 तो किसमें होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में और C2H5 OH बनेगा। सो आंसर इज, हमको कार्बोक्सिलेट आयन ये तो 1 गिवन है और ये अपन को 4 गिवन है ना, ये अपन को 3 गिवन है, तो ठीक है 1 and 3 will be your answer. So your answer will be, we can say that D is the answer for this. So answer will be equal to D. Yeah, answer. Right? Next we are given that is paragraph 2. इसमें अपन को गिवन है क्वेश्चन नंबर 51 में मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट ना, मोलर कंडक्टेंस पूछा है अपन से, तो अपन को पता है भाई arrange the following in the order of their molar conductance. So we know that now more the number of ions, more will be the molar conductance. So अपन कहेंगे इनमें सबसे ज्यादा आयन किसमें होगा, 3 में सबसे ज्यादा होगा, directly proportional to number of ions. And if the number of ions is same, then more the charge, more is the molar conductance. तो अपन कहेंगे भाई 3 सबसे ज्यादा होगा because it can give 4 ions, 1 can give only 2 ions, 2 can give only 1 ion, उसमें कुछ दे ही नहीं सकता आपको क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है। 3 can give 4 ions and 4 can give 2 ions, तो 1 और 4 में कंपैरिजन होगा, तो 1 और 4 में 1 में पोटेशियम K पॉजिटिव है और 4 में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव विल बी द आंसर, मतलब दैट विल हैव मोर मोलर कंडक्टेंस। सो योर आंसर इज सबसे ज्यादा 3 होगा, देन विल राइट दैट 4 होगा, then we'll say that 1 hoga, then it will be 2. So let us check where is the order given to us. So your answer is A. So I got the answer is A for that. That is the answer.
molar conductance, that will be directly proportional to the number of ions. If number of ions are same, check the charge. More the charge, more is the conductance. Let us check 52. Question number 52 में क्या given है अपन को? 52 में given है हमको which of the following pairs both the complexes will have the same geometry and hybridization. Okay? पहले वाले में NiCl4 है और NiCN4 है. तो ऑब्वियसली बात है पहले वाले में वीक लिगेंड है और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो पहला वाला sp3 होगा, दूसरा वाला dsp2 होगा, बिकॉज दूसरे वाले में पेयरिंग होगी. निकलेस 38 है, दैट इज 28 ना. क्वेश्चन नंबर 52 ना. तो ni जो होता है +2 गिवन है, 3d8 होगा, 4s0 होगा. तो पहले वाले में क्या होगा? Cl के केस में पेयरिंग नहीं हो पाएगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन Cn के केस में पेयरिंग होगा तो dsp2. दूसरा कोबाल्ट +3. तो अगर मुझे कोबाल्ट +3 गिवन है तो कोबाल्ट 3 दैट इज CF6 है, इसमें पेयरिंग तो हो नहीं सकता, 3 नेगेटिव गिवन था अपन को. तो मैं क्या करूंगा, पेयरिंग नहीं हो सकता तो sp3d2 होगा, राइट. और दूसरे वाले में अपन को क्या गिवन है? H2, वो भी कोबाल्ट +2. अगर कोबाल्ट +2 होगा सारे D2sp3, we know that. कोबाल्ट अगर +2 होगा तो जैसे एक्सेप्शंस लिखा था ना अपन ने, ये तो D2sp3 ही होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, राइट. फ्लोराइड के अलावा बाकी सारे के सारे अपन ने क्या लिखे थे? इट विल बी लाइक दैट. तो वो तो एक्सेप्शन में अपन ने, मतलब यू हैव डिस्कस दैट इन द क्लास. सो दैट इज ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स. और उसके बाद NiCO4, यू नो दैट Ni तो 0 होगा, ये तो 3d, क्योंकि Ni में तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. 4s2, ऑब्वियसली बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर 0 है. उसके बाद NiCN, दैट विल बी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया Cn के केस में तो ये पेयरिंग होगी क्योंकि Cn में +2 है, और पेयरिंग होगी तो इट विल बी dsp2. तो ऑप्शन सी में इट इज, एक तो sp3 है दूसरा dsp2 है, दैट इज रॉन्ग. लास्ट वाले ऑप्शन में वी आर एबल टू टेल दैट दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे बिहेव करेंगे, दोनों में कोबाल्ट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों ही D2sp3 होंगे. सो इन केस ऑफ D, both are D2sp3. So both are D2sp3 means its geometry is same in both the cases as well as the hybridization octet. We are able to tell in that case. Now we can write that question number 53 and 54 we are given like that. 53 में अपन को given है, that is if the solubility product of calcium phosphate is approximately अपन को given है, then its solubility will be, ठीक है, we'll calculate that part. So calcium phosphate, we know that what it is. calcium phosphate अपन को कैसे लिखना होता है इनको पता है. So we'll write that calcium phosphate. So Ksp of calcium phosphate will be equal to like this, because we know that is question number 53 we are talking about. Ca3PO4 whole twice हो जाएगा, that will be, that is thrice of calcium ion plus twice of phosphate ion, like that. So the Ksp will be equal to, that is 3s cube and 2s square. So I can write this as 108 s cube, s to the power of 5. Now we are given that the solubility product is given to me. If the solubility product is given to me, we know that what we have to do. So the solubility product of calcium phosphate is approximately 10 to the power 7 W by M. Then its solubility will be how much? So we have to calculate its solubility. ठीक है, so we'll write that W by M, because we know that solubility is weight in gram divided by molecular weight, that is moles per liter. तो we'll write that 108 solubility को अपन ऐसे लिख लेते हैं. So Ksp इसको अपन लिख लेते हैं 108. This will be W by M to the power of 5 लिख लेते हैं, क्योंकि solubility क्या हो जाएगा? Weight in gram divided by molecular mass, that is given to us. Now what we can do, हम इसमें बता सकते हैं कि भाई अगर ये approximately की बात कर रहा है ना तो अपन ऐसे बता सकते हैं.
भाई KSP अपन को गिवन है तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर अपन ले लें KSP विल बी इक्वल टू दैट इज 100 into W by M to the power of 5. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 into W by M to the power of 5. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज, क्या कर सकते हैं अपन, 10 to the power of, if KSP is equal to this, we are given that KSP हमको कितना गिवन है, W by 10 की पावर 7. अगर हमें 10 की पावर 7 गिवन है तो वी कैन राइट द आंसर एज दैट इज वेट इन ग्राम. हमको 10 की पावर 5 गिवन है ना, तो we are able to write that W will be, that is approximately, हम इसको क्योंकि हमने 108 को अप्रॉक्स ले लिया है ना, तो अपन अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ज्यूम कर लेते हैं. तो वी आर एबल टू टेल कि भाई अगर KSP हमें गिवन है तो आंसर विल बी व्हाट, W पर ग्राम. ये W पर ग्राम को अपन कितना ले लेंगे, दैट विल बी वेट इन ग्राम पर 100 ml. ये पर 100 ml आ जाएगा भाई. ये अपन को 10 की पावर 7 गिवन है, ये अपन को गिवन है W by M कितना गिवन था, दैट इज, ये अपन को गिवन है दैट इज 10 की पावर 7 और W by M to the power of 5. तो ये तो आपका कैंसिल हो गया. तो अपन को क्या मिल गया, अपन को दैट solubility will be equal to per 100 ml. So W ग्राम पर 100 ml आ गया, weight in gram per 100 ml. So that is how we can write that what will be the KSP. So we can write that, or you can write that directly कि भाई आप KSP लिख लो यहाँ पर और आप बता दो, आप KSP यहाँ पर लिख के और फिर बता दो ये 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा अपने लिए, और W by M अपन को 5 गिवन है तो पर 100 ml आ जाएगा. उससे ही बता सकता हूँ. या तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लो या आप इसको ऐसे कर लो, तभी आपके पास आंसर आ जाएगा. आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देखो, या तो आप उसको, मैंने सॉल्युबिलिटी को W by M ले लिया, या फिर आप ऐसे कर लो, ये आपको गिवन था S to the power of 5, आपको KSP गिवन है तो आप KSP सब्स्टिट्यूट करते हो. कितना गिवन था, 10 की पावर 7 W by M to the power of 5. ये KSP मुझे गिवन है तो इसको अपन ना अप्रॉक्स 100 ले लेते हैं, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा तो S to the power of 5 आ जाएगा. तो 10 की पावर 2 में अपन क्या कर रहे हैं, इसको ये आ जाएगा अपने पास 10 की पावर 5. सो 10 into अपने पास ये कैंसिल कर देते हैं, ये 10 की पावर 5 आ गया. सो W by M ये भी 10 की पावर 5 हो गया, तो अपने पास आ गया S to the power of 5. तो अपने पास ये आंसर आ गया, क्या आ गया अपने पास, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, वी कैन से दैट द KSP इज अराउंड, दैट इज वी कैन राइट दिस मच. So again we get it is weight in gram because molecular mass तो अपन को ये तो weight था ना, तो ये तो ऐसे आ गया 10 into W by M to the power of 5 is equal to S to the power of 5. So S will be equal to that is 10 into W by M. This is molecular weight. तो अपने पास क्या आएगा, अब ये तो मोल्स पर लीटर है ना, तो 10 into आ रहा है ना मोल्स पर लीटर, तो अपन क्या करेंगे उसको तो बता देंगे that will be solubility will be equal to W gram in 100 ml. Good now. Solubility will be equal to W gram in per 100 ml. So we can write like that. Next we can write that is हमको अगर given है in the above case the graph will be obtained. Graph can be obtained. अच्छा ठीक है, तो अपन को देखो जो ग्राफ given है ना अपन को 54, इस ग्राफ में अपन को ऐसे given है concentration of AGI और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बीआर नेगेटिव. अब इस कंसंट्रेशन में आपको ना ग्राफ ऐसे गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे होगे कि एजीएन का कंसंट्रेशन यहाँ तक तो कांस्टेंट रहा, उसके बाद बीआर नेगेटिव आयन बढ़ाने से एजीएन क्या हो गया, कम हो रहा होगा. तो आप क्या करो, एजीबीआर का ग्राफ बना लो सॉल्वेंटी का, बीआर माइनस, ये सॉल्वेंट. अब इसमें आप क्या करो, इसमें ना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बीआर ऐड करो. Br नेगेटिव आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, Br का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा लेकिन होगा क्या, AgN कम होगा, क्योंकि जब आप ये ऐड करोगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा बिकॉज द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो Br तो बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, लेकिन AgN का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा क्योंकि Ag का प्रेसिपिटेट होता जाएगा. तो ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ढूंढ लेते हैं भाई. अमोनिया एडेड इन AgBr, नो, इन केस में तो इसमें सिल्वर आयन कम होगा तो Br नेगेटिव आयन चेंज नहीं होगा. सिल्वर आयन कम होगा तो Br नेगेटिव आयन बढ़ेगा, लेकिन सिल्वर आयन क्या होता जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहां से कम होना शुरू हो जाएगा.
AgNO3 एडेड इन AgBr में अगर AgNO3 ऐड करूंगा तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट रहा है और कम हो रहा है, गलत है। AgNO3 इज एडेड, गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें तो सिल्वर आयन बढ़ेगा। NaBr is added in the saturated solution, that is unsaturated solution of AgBr, ये करेक्ट है। तो यहां से यहां तक का पॉइंट तो अपन बता देंगे कि भाई इस पॉइंट तक तो जब अपन ने NaBr ऐड किया ना तो सैचुरेशन पॉइंट आया, यहां अनसैचुरेटेड था A टू B में आके वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जब सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी ऐड करोगे तो रिवर्स होगा, क्योंकि बिफोर सैचुरेशन तो वो डिसॉल्व होगा, तो वो डिसॉल्व होता रहा। और जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आया, अब रिएक्शन अगर Br नेगेटिव है NaBr से NaBr को ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। That is how we get it. So your answer should be equal, that is D. So इसका आंसर अपने पास आएगा D will be the answer. That is the most correct answer. है ना? क्योंकि अगर अमोनिया वाला पार्ट होता तो अमोनिया में क्या होगा, सिल्वर आयन पहले ही कम होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा, यहां से ही शुरू हो जाएगा, सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि वो क्या बोल रहा है कि अपन ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन AgBr का लिया, NaBr ऐड करेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, पहले सिल्वर आयन थोड़ी ऐड कर रहे हो, Br की वजह से सैचुरेशन आ रहा है, तो Br आप ऐड करते गए तो Br की वजह से सैचुरेशन आ गया। अब क्या, उसके बाद अगर ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज सैचुरेशन के बाद अगर कॉमन आयन ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट फॉर पेपर द सॉल्यूशन ऑफ पेपर 1. So that is about the solution of paper 1, right? You can discuss that these questions with your respective teachers also. If you have any doubt, you can call me or you can discuss with me. So that's all. Thank you.